Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to my dear students of class 6. I hope you all are fine and safe at your home. My dear student, this is your English literature unit. So please take out your English books, and the name of the book is Oxford Reading Circle. As you all know, my dear students, in the previous lecture of literature, we had started the new topic of the midterm, and the name of the topic is the birthday present. And already we have done the reading and explanation of 1 or 2 page. So now in this lecture we are going to start the remaining chapter with the explanation. So don't go anywhere and stay with me. So please take out the books quickly. Okay, my all dear student, have you taken out the books? Very good. Now I am going to start the reading of the page number 11, as we have done the reading and explanation of page number 9 and 10. Okay, so put the finger along with me. What is it? Have a look. I found it in the alley. Alley is a difficult word. ठीक है, तो ये alley कहा जाता है पटरी को. ठीक है. The alley was a narrow passage that ran along the bottom of the garden where the dustbin stood. The 3 boys used to play there sometimes and occasionally found treasure that other. Perhaps occasionally, perhaps richer neighbors had thrown away. So Omri was quite excited as he tore off the paper. Inside was a small white metal cupboard with a mirror in the door. The kind you see over the basin is old-fashioned bathroom. You might suppose Omri would once again be disappointed because the cupboard was fairly plain and except for a shelf, completely empty. But oddly enough, he was very pleased with it. He loved cupboards of any sort because of the fun of keeping things in them. He was not a very tidy boy in general, but he did like arranging the things in cupboards and drawers and then opening them later and finding them just as he would left them. I do wish it locked, he said. You might say thank you before you start complaining, said Gillen. It got a keyhole, said their mother, and I have got a whole box full of keys. Why don't you try the smaller one and see if any one of them fit? Okay? अब वो इस पेज में जो स्टोरी को पोर्ट्रे कर रहा है वो क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उमरी की बर्थडे है, उसको उसका दोस्त पैट्रिक भी गिफ्ट देता है, जो कि इंडियन प्लास्टिक का डॉल होता है जो उसको अच्छा नहीं लगता, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको स्केटबोर्ड देते हैं, उसका भाई उसको जो है हेलमेट देता है. तो एक जो भाई है गिलन, वो क्योंकि उसके पास उसके गिफ्ट के टाइम पर पैसे अवेलेबल नहीं होते, तो वो उसको एक ब्राउन पेपर में रैप हुआ हुआ एक ख़राब से मतलब पैकिंग हुई हुई थी और एक बड़ा सा डब्बा उसकी टेबल पे उसके आगे रख देता है. तो उसका जो भाई है उमरी, वो उसको देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उसको खोलने ही लगता है. तो गिलन उसे बताता है कि ये उसको एले में मिला है. एले कहा जाता है पटरी को. ठीक है. उसने कहा वहाँ पर अक्सर हम लोग जाया करते थे 3 दोस्त, वहाँ पर कुछ बच्चे खेला करते थे और वहाँ पर उन्होंने ये बॉक्स जो है वो रख दिया था. तो मैंने उस बॉक्स को उठा लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको पैक करके तुम्हें बर्थडे में गिफ्ट कर दिया. अब जब वो उमरी उस पैकिंग को खोलता है तो वो क्या देखता है कि उसके अंदर जो है एक वाइट कलर का, ठीक है, एक वाइट कलर का छोटा सा कबर्ड है जिसके फ्रंट डोर पर जो है मिरर भी लगा हुआ है. तो जब वो ये देखता है तो वो इतना ज़्यादा खुश नहीं होता. फिर एक बार फिर जो है ना वो डिसअपॉइंट हो जाता है, मायूस हो जाता है, क्योंकि उसको उसकी पसंद का गिफ्ट नहीं मिलता. लेकिन फिर भी उमरी जो है उसको जो है वो शेल्फ़ को लेके काफ़ी चीज़ें डिसाइड करता है. वो सोचता है कि उसमें वो अपनी चीज़ें रखेगा, क्योंकि उमरी पर्सनली बज़ाते खुद जो है वो एक बहुत ज़्यादा क्लीन बच्चा नहीं है, लेकिन ये कि वो अपनी कबर्ड्स को, अपनी शेल्फ़ों को बहुत ज़्यादा साफ़ रखता है, उसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समेट के रखता है. तो उसका भाई कहता है कि ये जो शेल्फ़ है इसमें तुम अपनी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हो, तो ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा.
और उसको ये भी कहता है बजाय इसके कि तुम मुझसे शिकायतें करो, तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बर्थडे का प्रेजेंट दिया। तो इसलिए उमरी अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता गिलन को, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसकी अम्मी कहती हैं कि अरे भाई देखो इसके अंदर तो चाबी का निशान भी बना हुआ है, यानी कि इधर जो है वो की होल है, यहाँ से तो चाबी भी एंटर हो सकती है। दैट्स मीन कि वो जो कबर्ड है वो लॉक भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि मेरे पास चाबियों का डब्बा है, मैं लेकर आती हूँ। तो उसमें जो सबसे छोटी चाबी होगी वो इस कबर्ड में लगाकर हम चेक करेंगे कि वो इसमें फिट होती है या नहीं। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, ओपन द पेज नंबर 12। अब देखिए पेज नंबर 12 में वो क्या कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कीज वर मच टू बिग बट देयर वर हाफ ऑफ डजन दैट वर अबाउट द राइट साइज. All but one of these were very ordinary. The unordinary one was the most interesting key in the whole collection. Small with a complicated lock part and a fancy top, a narrow strip of red satin ribbon was looped through on one of its curly opening. Omri saved the key for last. अब क्या होता है जब उसकी अम्मी डब्बा लाती हैं तो उसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, कुछ तो बड़ी होती हैं, कुछ उसके डब्बे के बिल्कुल जो कबर्ड है उसके साइज़ के हवाले से होती हैं, ठीक है, जो कि आम सी होती हैं। लेकिन एक उसमें की ऐसी होती है जो कि बहुत ख़ास सी होती है, उसकी जो चाबी की जो आगे लॉक वाली जगह है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी बनी हुई है और वो एक बहुत अनऑर्डिनरी सी, एक बहुत ख़ास सी चाबी लग रही है और उसका जो टॉप है वो भी बहुत फैंसी बना हुआ है और उसके ऊपर एक रेड साटन का जो रिबन है वो बंधा हुआ होता है, तो वो जो है वो ओमरी की को उठा लेता है। None of the others fitted. At the last, he picked up curly-topped key and carefully put it in the keyhole on the cupboard door, just below the knob. He did hope very much that it would turn and regretted wasting his birthday cake cutting wish on one thing, something so silly or rather unlikely as that he might pass his spelling test the next day, which would take real magic to bring about, as he had not even looked at the word since they would been given out 4 days ago. Now he closed his eyes and unwished the test pass and wished instead that the little twisty key would turn Gillen's present into a secret cupboard. अब जब बहुत सारी चाबियां नहीं लग रही होती हैं और एक ये फैंसी चाबी जो कि ओमरी के पास होती है वो क्या करता है, उसको उठाता है और बहुत एहतियात से की होल के अंदर डालता है और जो उसका जो नॉब बना हुआ होता है, सुराख बना हुआ होता है, उसमें वो जब एंटर करता है तो वो इस चीज़ की ख्वाहिश करता है, होप करता है कि ये जो चाबी है इस सीक्रेट कबर्ड को खोल दे। और वो इतनी बेफजूल सी चीज़ के लिए अपना जो है बर्थडे का केक नहीं काट रहा, इवन कि उसने एक लफ्ज़ की तैयारी नहीं की। अगले ही दिन बर्थडे के अगले वेरी नेक्स्ट डे उसका स्पेलिंग टेस्ट था जिसके लिए उसको 4 डेज़ दिए गए थे और उसने इन 4 दिनों में कोई पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो वो यही चीज़ें सोच रहा होता है कि मैंने जो है अपनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक ये वेस्टेज जो चीज़ है, ये जो कबर्ड है, इसको खोलने के पीछे लगा हुआ हूँ। तो होपफुली ये कबर्ड खुल जाए और मुझे ये सीक्रेट डोर जो कबर्ड का जो सीक्रेट कबर्ड है ये इस्तेमाल करने का मौका मिले, ठीक है। द की टर्न स्मूथली इन द लॉक, द डोर वुड नॉट ओपन, हे मम आई हैव नॉट फाउंड। वो बहुत ही आराम से चाबी को लॉक पर डालता है और जब वो उसको ट्विस्ट करता है, घुमाता है, तो वो लॉक नहीं खुलता, जिसकी वजह से वो अपनी मदर को कहता है अरे अम्मी मुझे नहीं मिला। The next page, please open the page number 13. Have you, darling? Which one? His mother came to look. Oh, that one. How very odd. That was the key to my grandfather's jewel box that she got from Florence. But it was made of red leather and it fell to bits at last, but she kept the key and gave it to me. I threaded on that bit of the ribbon, it was much longer then, and hung it around my neck and told her I would always wear it and remember her. And I did for a long time, but then the ribbon broke and I nearly lost it. You could have got a chain of it, said Omri.
She looked at him. You are right, she said. I should have not done just that, but I did not, and now it's yours cupboard key. Please don't lose it, Omri, will you? Omri put the cupboard on his bedside table and opening it, looked inside thoughtfully. What would he put in it? It's supposed to be for medicines, said Gillen. You could keep your nose drops in it. No, that just wasting it. Beside, I have not any other medicines. Why don't you pop this in? Said the mother, suggested, and opened her hand. It was Patrick's Red Indian. I found it when I was putting your trousers in the washing machine. Omri, careful, stood the Indian on the shelf. Are you going to shut the door? Asked his mother. Yes, and locked it. अब इसमें होता क्या है कि उसकी मदर के पास जब वो कहता है कि ये नहीं खुला, तो उसकी मदर कहती है कि चलो हम देखते हैं। जब वो की को देखती है तो कहती है ये बड़ी ही अजीब सी बात है। वो उसको बताती है, ओमरी को, अपने बेटे को, कि ये जो है ये मेरी नानी का ज्वेलरी बॉक्स था, उसकी चाबी है जो कि वो फ्लोरेंस से लाई थी, ठीक है। और इसका जो रिबन है वो रेड लेदर का बना हुआ है, और मैं जब छोटी थी तो उन्होंने ये चाबी मुझे दी थी, और मैंने जो है इसको अपने गले में डाल ली थी और मैंने पहन ली थी। कुछ टाइम के बाद वो मेरे गले से लटकी हुई पता नहीं कहाँ गिरी और मुझसे गुम गई, लेकिन मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की और मुझे नहीं मिली। लेकिन अब ये की तुम्हें मिल गई है तो ये तुम्हारी है, इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना, इसे घुमाना नहीं। क्या तुम इसे संभाल के रखोगे? उसकी मदर कहती हैं। तो ओमरी कहता है कि ज़रूर। ओमरी इस चाबी को दोबारा प्यार से जब घुमाता है तो उसकी कबर्ड जो है वो खुल जाती है, और वो अपनी कबर्ड को बेड साइड, जो उसका बेड है, उसके साइड टेबल पर रख देता है और उसको खोलता है दोबारा, और उसको बहुत ही गौर से देख रहा होता है कि वो उसमें क्या रखे, अपनी दवाइयाँ रखें, क्या रखें। तो गिलन इतनी देर में आता है। गिलन कहता है यहाँ पर तुम अपनी मेडिसिन रखो, तुम्हारे जो नोज़ के ड्रॉप्स हैं तुम वो क्यों नहीं रख देते इस कबर्ड में? तो इसका जो भाई ओमरी है वो कहता है नहीं, वो तो उस कबर्ड को बर्बाद कर देगा, तो उससे बेहतर यही होगा कि मैं वो आई ड्रॉप्स इसमें ना रखूं। इतनी देर में उसकी मदर कहती हैं कि तुम ये क्यों नहीं रखते अपनी कबर्ड में? तो जब वो अपनी मुट्ठी खोलती हैं तो उसमें रेड इंडियन होता है जो कि उसको पैट्रिक ने दिया हुआ होता है ओमरी को। तो उसकी मदर कहती हैं कि जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश कर रही थी तुम्हारी पॉकेट से ये निकला, तो तुम इसको क्यों नहीं कबर्ड में रख देते? तो वो क्या करता है, ओमरी उस इंडियन को उठाता है और कबर्ड में रखकर उसको लॉक करने वाला होता है। तो उसकी मदर कहती हैं क्या तुम इसको लॉक कर दोगे? तो वो उसको कहता है जी बिल्कुल, मैं इसको लॉक कर दूँगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम अपना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आई नो कि अभी आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, पर प्लीज़ आप इस स्टोरी को रीड आउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। 9, 10, 11, 12 और 13 पेजेस हमने रीड कर लिए विद एक्सप्लेनेशन, तो आप भी इसको घर में रीड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने बाकी जो टॉपिक रह गया है उसको वाइंड अप करके इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली यू विल एंजॉय द वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए। दोबारा मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।